Hello, good morning everyone. Myself Aman Kochar, counseling psychologist, and आज हमारा होगा नाइन्थ लेक्चर ऑन द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड उसमें आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दैट इज़ द इंटेलिजेंस और द वेरिएशंस इन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस. ओके. सो वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने लास्ट जितने भी लेक्चर्स 8 लेक्चर्स अभी तक मेरे अपलोडेड हैं यूट्यूब वीडियो पे, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं, जो कि इस चैप्टर से प्रीवियस टॉपिक्स पे ही डिज़ाइन थे और क्रिएटेड थे. एंड उन टॉपिक्स में जनरली जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें हमने इंटेलिजेंस और आईक्यू के बारे में बात की थी, जहाँ पर हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए थे. द फर्स्ट वन वाज द नेचर एंड द नर्चर थ्योरी, जिसके ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड होती है ऐसा माना जाता है. एंड उसके बाद हमने बात की थी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की, जिसको अल्फ्रेड बिने और विलियम स्टर्न ने डिवाइस किया था. एंड उसके बाद उनका एक आईक्यू क्वोशिएंट आया, उसके बाद आईक्यू क्वोशिएंट को फॉर्मुलेट किया गया. दैट वाज द ratio of the mental age of an individual divided by the chronological age, and to round off it in percentage we multiply that value by 100. After that we studied about the normal probability curve or the NPC or the bell curve or the normal curve. ठीक, जहाँ पर हमने देखा था कि एक मीन एवरेज जो एक सेंट्रल टेंडेंसी इंटेलिजेंस की है वो एक वैल्यू पे असाइन हो जाती है, दैट इज अबाउट 100. एंड उसका जो रेंज है नॉर्मल इंटेलिजेंस का दैट स्टेज अबाउट फ्रॉम 70 टू 110, फ्रॉम 90 टू 110. ठीक, और 90 से 110 के अराउंड जितने भी नंबर्स फॉल हो रहे हैं उस कैटेगरी में, इफ़ the number of if the level of intelligence is on the lower side, that means that is below 90, then we can say the intelligence level and that it keeps on decreasing. And below 70, if the number reaches, then we can say that the individual is ID'd or intellectually disabled, or learning disability there is in the individual. And or if the intelligence crosses the mark of 110, then we can say that the individual has the ability of exceptional talents and giftedness beyond 130. It means the intelligence is superior or above average. Now, today what we are going to do is we are going to start with the new topic that is on the textbook itself, the variations of intelligence. And in the first the variation, we are going to talking about the intellectual deficiency. ठीक, तो कल जब हमने इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के बारे में बात करी थी और उसको डिस्कस किया था, तो उसमें एक चीज़ डिफाइन की गई थी कि जिन भी इंडिविजुअल्स का या मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, ठीक, मैं बार बार फोकस चिल्ड्रन पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे का एक रीज़न मैं आपको अभी डिफाइन करूँगा थोड़ी देर में, जो कि डेफिनेशन में ही मैंशनड है. हमारे पास जितने भी इंडिविजुअल्स या जो इंडिविजुअल्स हैं दैट आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, तो उनमें अगर इंटेलिजेंस लेवल विद एनी आईक्यू टेस्ट अगर परफॉर्म किया जाता है उन पर, एंड इट इज़ फाउंड दैट दे हैव द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और द आईक्यू number or the score below 70, then they can be termed as intellectually deficient, or they have a type of learning disorder. Okay. सो लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए आई जस्ट कोट एंड कोट फ्रॉम द बुक इटसेल्फ. द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी, द AAMD, views intellectual deficiency as intellect significantly sub average general intellectual functioning existing concurrently with deficits in adaptive behavior. The first point that we have to note is the adaptive behavior, and manifested during the developmental period. That is the second option. That is the second point that we have to focus on. So there are three major points that we have to keep an eye on. The first one is the sub-average intellectual functioning. The second is the adaptive behavior, and the third is that intellectual development or intellectual deficiency needs to be uh, seen in the developmental period itself. Now, what are these three terms? So we are gonna define it just now.
First, in order to be judged as intellectually disabled, a person must show significantly sub-average intellectual functioning. Now, sub-actual, sub-average intellectual functioning is meant by the term that those individuals or persons who are having or who are carrying the intellectual capability or the intelligence quotient below 70. Okay, so those individuals can be termed as IQ or mentally retarded in terms of uh, uh, American Association of Mental Deficiency. The second relates to the deficiency in adaptive behavior. Now, what do we mean by the word adaptive behavior? Adaptation is that आप अपने सराउंडिंग्स के साथ किस तरीके से सोशलाइज कर पाते हैं, किस तरीके से सोसाइटी में घुल मिल पाते हैं, गैदरिंग कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं, दैट इज द टर्म मेंट बाय अडेप्टिव बिहेवियर. ओके, नाउ अडेप्टिव बिहेवियर को थोड़ा और अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो it is the person's ability to meet the responsibilities of social, personal, occupational and interpersonal stages of life. सोशल लाइफ आपकी अगर मीट कर रही है, इट मीन्स कि आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप में सोशल एबिलिटी है गैदरिंग करने की, कम्युनिकेट करने की, लोगों से बात करने की, अपने आंसर्स, क्वेश्चंस, डाउट्स पुट अप करने की, देन यू आर वेल एंड गुड. Second is the personal ability. Personal ability means the personal things that you are going to do, the personal household works, the personal hygiene that you are going to carry, the type of the amount of study that you are going to do, the amount of sleep, eating habits, sleeping habits. These are all counted in the personal habits. Occupational and interpersonal. Occupational means that if someone having intellectual disability and he or she is being employed in any work area, then what type of work they are given or what type of work they are assigned to do, then that means that they have uh, a type of level of intelligence that can be categorized as mild. We are going to study the four types of intellectual deficits, that as the mild, moderate, severe, and profound. And these are basically categorized on the basis of the score we get in the intellectual quotient test or the intelligence test. Now, the adaptive behavior is measured by the clinical interview and the standardized assessment scales. Whenever we do clinical interviews, we do two types of interviews. The first one is the history taking and the personal history or the assessment. And the second one is the MSE, that is the mental status examination, in which we do the type of adaptive behavior tests. Okay, so these are the two kinds of tests that we do in the clinical setups or in general counseling sessions. If not with all the individuals, ये जो दो टेस्ट मैंने बताए, जनरल इंटेलिजेंस एंड द जनरल टेस्ट, द हिस्ट्री टेकिंग टेस्ट एंड द सेकेंड इज द MSE, द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट हम इंडिविजुअल्स पे, हर इंडिविजुअल पे नहीं करते. जिन इंडिविजुअल्स पे हमें लगता है कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं है एक इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल की तरह रिस्पॉन्ड करने की, देन वी कैरी आउट द सेकेंड टेस्ट, दैट इज द MSE और द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. ठीक, और if there is any kind of mental disorder which is on a higher side or is on a profound or severe side, then we do the kind of mental status examination on that individual, in which we give questionnaires or we ask verbal questions. The type of intelligence test that we are gonna study today as well, individual and group test, verbal, non-verbal and performance test. So वो सारे टेस्ट इंक्लूड हो जाते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में. Individuals, and the third one is the developmental period. The definition also carried out the term that these functionings that are not visible, uh, the general functionings which are not visible, they must be present at the developmental stage. Not what is developmental stage? Developmental stage is the age that is before 18 years. Okay, it means that before the adulthood or when the child crosses the part of teenage, then we can say that
the intelligence test must be carried out and before the 18 years of age, 18 साल से पहले की उम्र में अगर ये इंटेलिजेंस टेस्ट करवाए जाते हैं। जैसे एक टेस्ट है ऑटिज्म के लिए, तो अगर मैं डिफाइन करूं ऑटिज्म के लिए, तो ऑटिज्म में भी हमारे पास इंटेलिजेंस या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ सकती हैं। अदर देन दैट वहाँ पर तो प्रोफाउंड और सिवियर लेवल की हमारे पास फंक्शनिंग, अडेप्टिव फंक्शनिंग नहीं देखने को मिलती। इट मीन्स कि वहाँ पर हमारे पास बहुत ही सिवियर लेवल का डेफिसिट देखने को मिलेगा इंटेलेक्चुअल और इंटरपर्सनल रिलेशंस में। तो वहाँ पर हम एक टेस्ट करते हैं दैट इज कैरिड अराउंड एट द एज ऑफ 5 or 6 years ऑफ एज। सो उस एज पैटर्न में, बिकॉज ऑटिज्म एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जहाँ पर हमें टेस्ट जल्दी एक अर्ली स्टेज में करना होता है ताकि वो डिटेक्ट हो सके एंड उसका थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन स्टार्ट कर सके। Individuals who are categorized as having intellectual disability show significant variations in their abilities. अगर आप ये दो इंडिविजुअल्स कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, जिस इंडिविजुअल का एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बिलो 70 आपको विजिबल हो रहा है ऑन एन इंटेलिजेंस टेस्ट, और वहीं पर अगर आप एक नॉर्मल फंक्शनिंग इंटेलिजेंट पर्सन या एक नॉर्मल फंक्शनिंग पर्सन के बारे में बात करेंगे, तो इन दोनों के कंपैरिजंस में आपको देखने को मिलेगा दैट दीज टू इंडिविजुअल्स कैरी डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज एंड they have different kinds of interpersonal relations or the adaptive functionings. Right? And now if we come to the 4 types of categories that are in the intellectual deficiency, तो वहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो लेवल मिलता है दैट इज ऑफ द माइल्ड लेवल विच रेंजेस in the value in between the values of 55 to approximately 70, and moderate value it is around 35 to 40, and severe level to approximately 50 to 55, that is a moderate one. Severe is 20 to 25 to approximately 35 to 40, and the profounds are below 20 and 25. So if I summarize these terms, you can note down these terms as I'm going to explain now. The mild value reaches the IQ range of 50 to 70. The moderate one is around 35 to 50. The severe is 20 to 35, and the profound is below 20. Okay. So we have basically we have taken a range of plus minus 5 score on each level of intelligence. And now if I talk about the first one, that is the mild mental retardation. Now these two terms are used interchangeably, mental retardation and intellectual deficiency. But basically mental retardation किसी को कहना या mentally retarded कहना, तो वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, बिकॉज साइकोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक वर्ल्ड में अगर हम इन दो टर्म्स को देखें तो हमें देखने को मिलता है कि मेंटली रिटार्डेड अगर किसी इंडिविजुअल को कहा जाता है, तो मेंटली रिटार्डेड अगर किसी इंडिविजुअल को कहा जाता है देन उसको सोसाइटी ऐसा समझती है दैट ही और शी इज काइंड ऑफ मैड, वो पागल है। ठीक, तो उसको लिटरली एक टर्म पागल का डिनोट दे दिया जाता है, उसको एक नाम से बुला दिया जाता है कि ये पागल है या इसमें दिमाग नहीं है या ये थोड़ा सा कम बुद्धिमान है। तो ये सारी टर्म्स जो हैं उस इंडिविजुअल के मोराल को डाउन कर देती हैं, उस इंडिविजुअल की सेल्फ एस्टीम को बहुत ही गलत तरीके से हार्म करती है। सो इस चीज़ के लिए सोसाइटीज़ ने और एसोसिएशंस ने, साइकेट्रिक और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस ने एंड वर्ल्ड वाइड जितनी एसोसिएशंस हैं उन सब ने इस टर्म को चेंज करके एक टर्म दे दिया दैट इज़ द LD, लर्निंग डिसेबिलिटी। बट अगर मैं बात करूं तो जो हमारा सबसे पहला एस्पेक्ट था, देन अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, that is of the moderate level of MR, that is the mild mental retardation. Now I'm gonna just read my notes that I have prepared for all of you, जहाँ पर आप नोट डाउन कर सकें टर्म वाइज, पॉइंट्स वाइज, जो कि टर्म्स मैं इन चारों कैटेगरीज के लिए डिस्क्राइब करूँगा। The first one is a mild MR, which is the mild mental retardation.
This is the commonest type of MR, accounting for 85 to 90% of all cases. मेजरली जो भी केसेस आईडी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी एमआर या एलडी के लिए आते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज के लिए आते हैं, तो उनमें से 85 टू 90% केसेस जो हैं वो माइल्ड लेवल के हमें विजिबल होते हैं या दिखते हैं। डायग्नोसिस जो है वो इसका लेटर ऑन स्टेजेस में डेवलप किया जाता है देन अदर टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशंस। In the preschool period, that is before 5 years of age, these children often develop like other normal children with very little deficit. तो 5 साल से कम की एज में हो सकता है कि इंडिविजुअल्स ये दोनों ही नॉर्मल दिखें, एक जिसका आईक्यू अबव 70 था, एक आईक्यू का लेवल जिसका बिलो 70 था। तो ये आप दोनों को बिल्कुल ही नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तरह दिखेंगे स्कूलिंग लाइफ में। बट एज दे प्रोग्रेस अप टू द 6th क्लास, बिकॉज 6th क्लास में क्या होता है, वहाँ पर आपको आपके लिए वोकेशनल, आपके लिए वर्बल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जिसके बेसिस पर आप ऐसा डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो इंडिविजुअल जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा है वैसे क्वेश्चंस जो बाकी नॉर्मल चिल्ड्रन कर पाते हैं। Only under stressful conditions or in the presence of an associated disease, supervised care may be needed. ऐसे केसेस में अगर आपके पास माइल्ड इंडिविजुअल, माइल्ड मेंटल रिटार्डेड या माइल्ड एलडी का चाइल्ड है और साथ ही साथ उसको कोई ऐसा ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर या ऑर्गेनिक कोई और हेल्थ डिजीज है, तो एक सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज दीज टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन आर टोटली एजुकेबल। इनको हम ट्रेन कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। दे कैन कैरी ऑन विद देयर लाइफ स्टाइल्स, दे कैन कैरी ऑन विद देयर एसोसिएटिव बिहेवियर्स और द इंटरपर्सनल रिलेशंस आफ्टर मैनेजिंग दीज इशूज। This group has been referred to as educable in a previous educational classification of mental retardation. तो यहाँ पर इस टर्म को, इस ग्रुप को एजुकेबल डिफाइन किया गया है। इट मीन्स कि आप इनको एजुकेट कर सकते हैं विद द नॉर्मल चिल्ड्रन एज वेल, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे आर ट्रेन्ड टू डू सो। द नेक्स्ट कम्स द मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड or the moderate MR or the moderate LD. About 10% of all persons with MR have an IQ between 35 to 50. तो 10% केसेस ऐसे आपके बीच में फॉल करेंगे जिनमें आपको जो मेंटल रिटार्डेशन का लेवल मिलेगा वो मॉडरेट मिलेगा। इस क्लासिफिकेशन को ट्रेनेबल असाइन किया गया है, डिफाइन किया गया है फ्रॉम द वर्ड बाय द वर्ड ट्रेनेबल, जैसा कि पहले माइल्ड के लिए किया गया था एजुकेबल। नाउ दीज आर टर्म्ड एज ट्रेनेबल। इन द अर्ली इयर्स, डिस्पाइट हैविंग पुअर सोशल अवेयरनेस, दीज चिल्ड्रन कैन लर्न टू स्पीक। ऐसे बच्चे जो हैं अर्ली लेवल पे बोलना सीख सकते हैं। ऑफन दे ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल आफ्टर द 2nd क्लास। दे कैन बी ट्रेन्ड to support themselves by performing semi-skilled or unskilled work under supervision. यहाँ पर भी सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है, बट जो वर्क है वो सुपरविजन के अंडर ही होना चाहिए। इट इज़ नॉट द सेम एज इन द केस वी सॉ ऑफ द माइल्ड मेंटली रिटार्डेड वेयर सुपरविजन इज नीडेड इफ देयर इज एक्सेप्शन इन दैट केस। ठीक, तो वहाँ पर अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कोई डेफिसिट है, साथ साथ कोई और डिजीज़ या कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है either biologically or either inheritedly, then mild केस में सुपरविजन की ज़रूरत पड़ सकती है, बट इन द केस ऑफ मॉडरेट यहाँ पर सुपरविजन चाहिए ही चाहिए। A mild stress may destabilize them from their adaptation. हो सकता है वो इंडिविजुअल अडेप्ट कर ले अपने आप को उस इन्वायरमेंट में, बट जैसे ही उस इन्वायरमेंट में उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेस मिलेगा वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा या अपना जो एक ट्रैक है वो खो देगा। Thus they work best in the supervised occupational settings. एक सुपरविजन इसीलिए चाहिए होती है इन इंडिविजुअल्स को ताकि ये स्टूडेंट्स जो हैं वर्क कर सकें इन देयर स्कूल लाइफ एंड आफ्टर देयर स्कूल लाइफ, जहाँ पर भी एम्प्लॉयड किए जाएंगे तो वहाँ पर इनको सुपरविजन के अंडर ही ट्रीट किया जाए। Now, the third one comes the severe MR or the severe mental retardation, that is of the IQ value that ranges from 20 to 35.
These are basically termed as dependent. Severe mental retardation is often recognized early in life. माइल्ड में जैसा हमने देखा था कि वो हो सकता है सिक्स क्लास का बच्चा जो है वो 11 साल 12 साल का हो सकता है, बट तब तक उस बच्चे के लिए आपको हो सकता है इतना अटेंशन ना देना पड़े इन टर्म्स ऑफ हिज इंटेलिजेंस लेवल, हिज और हर इंटेलिजेंस लेवल। बट जैसे जैसे इंटेलिजेंस लेवल का स्कोर कम होता रहता है, as we saw in the moderate where we needed supervision, and now the case has been diagnosed as severe mental retardation, वहाँ पर आपका जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है वो आपको अर्ली लाइफ में ही दिख जाती है दैट वो पुअर है। सिग्निफिकेंटली जो मोटर डेवलपमेंट होती है दैट इज ऑफ द ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड द फाइन मोटर स्किल्स। द ग्रॉस मोटर स्किल्स इज द मूवमेंट ऑफ योर लिम्स एंड योर फीट एंड योर हैंड्स, but the fine motor skills is like holding the pen, holding the pencil, as I'm gonna show in this example. माइल्ड सिवियर एमआर में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे कैन नॉट इवन होल्ड देयर पेन्स और पेंसिल्स और द टूल्स दैट दे आर गोना बी यूजिंग इन लेटर लाइफ। ठीक, तो इन चीज़ों में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज देखने को मिल सकती है अर्ली लाइफ में सॉरी। और अगर आपको ये डिफिकल्टीज, ये साइंस देखने को मिलते हैं तो आई एम श्योर दैट आपको एक साइकेट्रिक या एक साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है अपने चाइल्ड के लिए, या इन जनरल आपको कोई भी अपने सराउंडिंग में सोसाइटी में ऐसा दिखता है। लेटर इन लाइफ, हाँ, वन थिंग मोर दैट दे हैव डिलेड स्पीच इन द सेंस दैट जो बच्चे 1.5 साल 2 साल तक कुछ वर्ड्स बोलना सीख जाते हैं, बेसिकली मम्मा पापा एंड ये वर्ड्स जो हैं वो तो अर्ली स्टेजेस में भी सीख जाते हैं, बट लेटर ऑन अगर 1 साल 2 साल 2.5 साल तक भी आपको डिलेड स्पीच मिलती है, ये वर्ड्स भी वो कॉम्प्रिहेंड करके समझ नहीं पा रहे हैं, उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, वर्बली बोल नहीं पा रहे हैं, इट मीन्स दैट देयर इज अ साइन दैट नीड्स टू बी चेक्ड और डायग्नोस्ड। Later in life, elementary training in personal health care can be given and they can be taught to talk. So later on stages में when they reach up to a level where they can do social communication, but not in a very fluent level as we saw in the moderate and the mild levels, but हाँ, जिस लेवल तक आप एक इंडिविजुअल जो कि सिवियर मेंटल रिटार्डेशन से ग्रस्त है और वो समझना शुरू कर चुका है कि सोसाइटी क्या होती है या मुझे थोड़ा बहुत सही और गलत के बीच में फ़र्क पता है, तो वहाँ पर आप उस स्टेज में उसको स्पीच थेरेपी दिलवा सकते हैं। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल इन दैट स्टेज। एट बेस्ट दे कैन परफॉर्म सिंपल टास्क अंडर क्लोज सुपरविजन। Again, there is a slight difference between the supervision, guided supervision, and a very close guided supervision. In the earlier educational classification, they were called as dependent. Now the last one, which is the profound mental retardation, which falls into the IQ category of or the IQ score of below 20. This group accounts for about 1 or 2% of all the persons having ID or mental retardation. 1 से 2% केसेस आपको आईडी जो कि प्रोफाउंड लेवल पर आपको विजिबल हो सकती है, ये आपको देखने को मिल सकती है। द एसोसिएटेड फिजिकल डिसऑर्डर्स विच ऑफन कंट्रीब्यूट टू एमआर आर कॉमन इन दिस सब टाइप। द अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स इज मार्कली डिलेड। मार्कली डिलेड का मतलब है कि वो विजिबल है। डिलेड स्पीच हो सकता है, डिलेड फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन पैटर्न हो सकता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो सकती है कम्युनिकेशन में या सोशल गैदरिंग्स में, या स्पीच आउटपुट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे मार्क्ड हैं। मार्क्ड मीन्स विजिबल हैं, इनको आप नज़रअंदाज या अवॉइड या ओवरलुक नहीं कर सकते। ये सारे सिम्टम्स आपके क्लियरली विजिबल होते हैं अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल आता है जो कि प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन से अफेक्टेड है। They often need nursing care or life support. They are termed as life support or nursing care, क्योंकि इनको 24 आवर्स का सुपरविजन चाहिए और वो भी क्लिनिकली गाइडेड सुपरविजन। ठीक, दे कैन नॉट बी टर्म्ड और दे कैन नॉट बी हील्ड और क्योर्ड कि आपको घर में एक नर्स, घर में कोई इंडिविजुअल है, कोई पेरेंट है जो कि या कोई गार्जियन है जो कि टेक केयर कर रहा है। नो, दैट इज नॉट द केस विद द प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन एट ऑल।
आपको एक नर्सिंग लाइफ केयर चाहिए या एक लाइफ केयर सपोर्ट चाहिए जो कि थ्रू आउट देयर लाइफ सपोर्ट देगा। सो ये थे हमारे पास 4 टाइप के इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज जिनके बारे में एनसीईआरटी बुक्स में चैप्टर नंबर 4 में मेंशन्ड है वो चीज़। और चैप्टर नंबर 4 में मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ कि वो कहाँ पर मेंशन्ड होगा। चैप्टर नंबर 4 में वो आपको मिलेगा पेज नंबर 85 पे, दैट इज द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एंड on the table 4.2 where we can see the functionings or the areas of functioning, that is the self help or the speech, academic, social, vocal and adjusting living and the adult living। तो यहाँ पर माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर में आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ में। Now, if we go from the one end of the normal probability curve or the NPC or the bell curve, we have seen the lower side or what we call the profound or the severe side of the intellectual deficiency or the intelligence level. Now we are gonna come across and see what happens if there are individuals who are carrying high intelligence levels, or basically they are exceptionally gifted or individually gifted, or intellectual giftedness is present in those individuals. Louis Terman, again, uh, he was the one who studied gifted individuals in 1925, and he studied about the lives of children, around 1,500 children he studied with the IQs of 130 and above. Although the terms talent and giftedness are often used interchangeably, they mean different things. गिफ्टेडनेस और टैलेंटेड, यहाँ पर ये दो टर्म्स बहुत ही ज़्यादा आपको कॉमन इंटरचेंजेबली यूज़ करने को देखने को मिलेंगी, जैसा कि मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी या लर्निंग डिसेबिलिटी आपको देखने को मिलती हैं 3 टर्म्स। ऐसे ही हमारे पास हायर आईक्यू परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स के लिए गिफ्टेडनेस एंड टैलेंटेड, ये 2 वर्ड्स आपको मिलते हैं देखने के लिए। गिफ्टेडनेस इज नॉट समथिंग कि आपको जैसे पेरेंट्स छोटे बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो पेरेंट्स कहते हैं हाँ भगवान ने उसको गिफ्ट दिया है, हाँ भगवान ने उसको ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया है। नो, दैट इज़ नॉट द केस एट ऑल। ठीक, भगवान किसी को ऐसा कम इंटेलिजेंट या ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिएट नहीं करता है। And if we see it from a point of view of scientific reasons, then we come to know that giftedness and talent, these two are very different terms. Now if we try to understand what is the meaning of the term giftedness, giftedness is the exceptional general ability that is present in variety of areas। giftedness आपको variety of areas में देखने को मिल सकता है। ठीक, कोई इंडिविजुअल बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ पर्सनली सोशलाइज कर रहा है, आपके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे रखने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ वो अपनी सोसाइटी, अपने इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है। देन और इसके साथ उसका आईक्यू भी बहुत जो है वास्ट लेवल पर है। इट मीन्स कि वो बियॉन्ड 130 टच कर चुका है उस लेवल को, तो वो एक गिफ्टेडनेस का एग्जाम्पल है। टैलेंट जो है एक नैरोअर टर्म है। जैसे हम कहते हैं दैट एन इंडिविजुअल इज वेरी टैलेंटेड, ठीक, दैट वी से अबाउट क्रिकेटर्स, लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और MS धोनी, देन वी कैन से कि वो एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सन्स हैं, ठीक, एक्सेप्शनली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, वो गिफ्टेड नहीं है। आई मे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं इस चीज़ से, इस टर्म से सहमत नहीं होंगे, बट एनीवेज दैट इज़ व्हाट साइकोलॉजी इज़। साइकोलॉजी आपको चीज़ें बताता है विद द फैक्ट्स। These are not the delusions or the disbeliefs that we carry on with our life. Psychological explanations completely fact based होती है, and जिसके बेसिस पर ही आपको एक टैलेंट का एक टर्म अभी मैं देखने को अभी विजिबल होगा, दैट इज अ नैरोअर टर्म एंड रेफर्स टू द रिमार्केबल एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड, दैट इज एस्थेटिक, जैसा मैंने बताया प्लेयर्स के बारे में,
हमारे पास टैलेंटेड लोग हो सकते हैं म्यूज़िकल इंडस्ट्री में या स्पिरिचुअल लाइफ में टैलेंटेड लोग हो सकते हैं. द हाईली टैलेंटेड आर समटाइम्स कॉल्ड द prodigies. For example, there is a chess player. He is exceptionally a very well talented player who is called a prodigy, and the name is Magnus Carlsen. सो मैग्नस कार्लसन बेसिकली एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके साथ एक सिंड्रोम भी अटैच्ड है, दैट इज़ द एस्पर्गर सिंड्रोम. एंड साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड इंडिविजुअल है. एंड वो एक नैरोअर फील्ड में सिर्फ एक ही उनमें टैलेंट विजिबल हो सकता है, दैट इज़ ऑफ प्लेइंग चेस. नाउ गिफ्टेड चिल्ड्रन, व्हाट इज डिफरेंट इन गिफ्टेड चिल्ड्रन? अगर मैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात करूं तो इनमें ऐसा क्या अलग है या क्या डिफरेंट है जो कि अलग करता है इन्हें एक नॉर्मल इंडिविजुअल या एक सब एवरेज या बिलो एवरेज इंडिविजुअल से? दे बेसिकली शो द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन देयर अर्ली लाइफ और इन देयर अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, जहाँ पर हमें वो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग या कैपेबिलिटीज नहीं देखने को मिली थी इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअली डेफिशिट्स चिल्ड्रन, वहीं पर उसी का ऑपोजिट टर्म अगर हम देखें और तो वो हमें वो मिलती है गिफ्टेडनेस में, जहाँ पर एक्सट्रीम टैलेंट हमें देखने को मिलता है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ. Even during infancy and early childhood, they show larger attention span, preference for novelty, sensitivity to environmental changes, and early appearance of language skills. कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, आप आर्टिकल्स अगर सर्च करेंगे तो कुछ इंडिविजुअल्स आपको मिल जाएंगे दैट बाय द एज ऑफ 13 दे completed their schooling, and by the age of 15 they did their graduations, and by the age of 17 they completed their PhDs, and they are often termed as lecturers. In India there are also individuals, I currently am not remembering the exact names of those individuals, but I have a faded memory of those individuals that I have seen on news channels when they came for interviews, and the interviewers asked them questions. One example of an extremely talented individual who is very good in mathematics, she is Mrs. Shakuntala Devi, and as you have seen, a movie was also made on her, in which I guess Vidya Balan acted, and she was a very good actor in portraying the role of शकुंतला देवी जी, एंड वो एक प्रोडिजी या एक एक्सेप्शनल टैलेंट के तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, अगर मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने की कोशिश करूं जो कि आपको डिफाइन कर देंगे कि गिफ्टेड चिल्ड्रन किस तरीके से अलग होते हैं नॉर्मल या बिलो एवरेज चिल्ड्रन से. सो दे हैव एडवांस्ड लॉजिकल थिंकिंग. लॉजिक्स जो हैं बेसिकली डेवलप होते हैं आफ्टर अ स्टेज ऑफ 8 और 9 ईयर्स, जहाँ पर अब लॉजिक्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. दैट छोटी एज में बताया जाता है दैट इफ आई टेक एन एग्जांपल दैट द स्काई इज ब्लू इन कलर, ओके, तो छोटे बच्चे उस चीज़ को मान जाएंगे बिकॉज उनका इंटेलेक्चुअल अडेप्टेबिलिटी ऐसा हुआ है. whenever they are drawing any scenery or any portrait, what do? That they do the color blue in sky, ठीक, and तो ऐसा उनको लगता है, फील होता है दैट द स्काई इज ब्लू इन कलर, है ना. वहीं पर अगर वो लेटर ऑन स्टेजेस में आगे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, दे आर ट्रेन, दे आर एजुकेटेड, एंड उनको एक अच्छा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिलता है, प्रोवाइड होता है, तो उनके लॉजिक्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं. बेसिकली होता ये है कि जो ब्रेन के हमारे पास साइनेप्टिक लेफ्ट्स हैं या जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं on a later on stage to provide logical thinking to questions and the doubts. So आप रीजनिंग करने लग जाते हो, ठीक. तो उस एज में अगर आपका रीजनिंग हो रहा है अराउंड द एज ऑफ 9 और 10, दैट कैन बी टर्म्ड एज नॉर्मल, ठीक.
बट अगर वो लॉजिकल रीजनिंग आपका अर्ली डेवलप हो जाता है, देन कुछ केसेस में उसको टैलेंटेड माना जाता है, बिकॉज ऐसा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एक छोटे बच्चे का, एक छोटे इंडिविजुअल का विजिबल नहीं होता इन जनरल लाइफ। ठीक। हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, दे हैव हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। कुछ इंडिविजुअल्स आपने देखे होंगे जो कि चाइनीज़ एथलीट्स हैं। बेसिकली अगर हम सिर्फ चाइना की बात करें तो हमें हर साल ओलंपिक्स में, हर 5 साल बाद जो ओलंपिक्स होते हैं, तो हमें देखने को मिलता है दैट ओलंपिक्स में फर्स्ट पोजीशन हमेशा चाइना ही ग्रैब करता है। एंड उसका बहुत ही बड़ा एक वैलिड रीज़न है दैट हर इंडिविजुअल को टैलेंटेड बनाया जाता है। वो गिफ्टेड नहीं है, उसे टैलेंटेड बनाया जाता है, बिकॉज वो एक ही टर्म में, एक ही स्पोर्ट में या एक ही एस्थेटिक स्पोर्ट में वो टैलेंट क्रिएट कर देता है, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क और द डेली प्रैक्टिस दैट दे डू फॉर अराउंड 12 to 13 आवर्स अ डे। तो छोटी एज में ही जो ट्रेनर्स हैं, जो कोचेस हैं, वो चाइना में बच्चों को जो है विद द कंसेंट ऑब्वियसली वो ले जाते हैं और ट्रेन करना शुरू कर देते हैं until and unless they fetch a gold in the Olympics or any kinds of games that we have in our world right now. सो वहाँ पर उनका टैलेंट निखर के आता है। जो हम बात करते हैं अगर टैलेंट की, सो दैट इज़ व्हाट टैलेंट इज़। दे आर समवॉट एक्सेप्शनली टैलेंटेड इन, बट इन ओनली अ नैरोअर फील्ड और ओनली वन सेट ऑफ एरिया ऑफ फंक्शनिंग। ठीक। तो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ इंडिविजुअल्स आपने बच्चे देखे होंगे, एक गेम होता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का, दैट इज़ द रूबिक्स क्यूब। ठीक। तो रूबिक्स क्यूब को जनरली अगर आपको सॉल्व करना हो, एक इंसान अगर 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस कर रहा है, सिमिलरली लाइक मी, बिकॉज आई समवॉट नो हाउ टू सॉल्व अ रूबिक्स क्यूब, बट एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं 1 मिनट या 2 मिनट लगा सकता हूँ, जहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स को याद करूँगा, कुछ एल्गोरिदम्स लगाऊंगा, और उसके बाद मैं 1 या 1.5 मिनट में एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकता हूँ। बट जहाँ पर हमारे पास गिफ्टेडनेस या टैलेंटेडनेस आता है, तो वहाँ पर हम बात करते हैं कि जिस जगह पर आपको इंडिविजुअल्स के लिए वो देखने को मिलता है, स्पेशली द चाइनीज़ एंड जापानीज इंडिविजुअल्स, जहाँ पर वो विद इन सेकेंड्स, विद इन अ फ्रेम ऑफ 5 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स और 1 सेकेंड और 2 सेकेंड वो उस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर देते हैं। समवॉट दे क्रिएट देयर टैलेंट विद द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दे डू इन दैट मच लेवल कि वो ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं और वो सारे ये इंडिविजुअल्स जो हैं रूबिक्स क्यूब ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स में जैसे हमने देखा, या इंडिविजुअल्स में हमने देखने की कोशिश करी कि एक्सेप्शनल टैलेंट या गिफ्टेडनेस जो होती है वो सिर्फ एकेडमिक्स की बेसिस पर नहीं होती, जैसा आपकी बुक्स में भी लिखा है और हम डेली लाइफ इन जनरल भी देख सकते हैं, देखने की कोशिश भी करते हैं कि इन जनरल आपको सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा हो के आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड नहीं हो जाते। जैसा हमने स्पोर्ट्स प्लेयर्स के बारे में देखा और चाइनीज़ प्लेयर्स के बारे में देखा, कुछ म्यूजिशियंस हैं ऐसे, कुछ आर्टिस्ट हैं जो ड्रॉ कर लेते हैं, जो पेंट कर लेते हैं बहुत ही फाइन, एक स्मूथनेस, एक ईज के साथ, एंड दे डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी डूइंग दैट, एंड वो एक बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट है उनका जो वो डेवलप हो जाता है। सो बेसिकली टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनको स्कूल लेवल में वो देखो स्टूडेंट्स वो चीज़ हो क्या जाती है कि विजिबल तो हो जाती है कि हमें इंडिविजुअल गिफ्टेडनेस दिख जाती है कि ये स्टूडेंट जो है बाकी सबसे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहा है, बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पा रहा है, इसका वर्बल कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है, फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी है इसकी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है स्कूल लाइफ में। तो उस बच्चे को एक स्पेशल केयर दिया जाता है, जहाँ पर उसको क्लासरूम से डिफरेंट या उसको हाईली इंटेलेक्चुअल मान के उसको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था हमारे पास 3 इडियट्स में, जहाँ पर एक सीन होता है, जो बड़े भाई थे उनके, जावेद जाफरी जी, तो वो स्कूल नहीं जाते थे, या वो जब स्कूल जाते थे तो वो अपना होमवर्क अपने नौकर यानी आमिर खान से करवाते थे, और उन्हीं के स्कूल की ड्रेस पहन के आमिर खान जो है वो स्कूल अटेंड किया करते थे। एंड उस सीन में एक चीज़ थी कि एक 6 क्लास का बच्चा एक 10वीं का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो ये फुल एक सीन था जो दिखाता है एक्सेप्शनल टैलेंट को।
तो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, हेल्पफुल रहेगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, और वहाँ पर हम जानेंगे कि किस किस तरीके से इंडिविजुअल्स का इंटेलिजेंस टेस्ट अलग अलग फॉर्मेट्स में, अलग अलग मेथड्स में किया जाता है, क्या क्या टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट हमें देखने को मिलेंगे। और आज के टॉपिक के लिए जो हमारा टॉपिक था वो था वेरिएशंस इन इंटेलिजेंस। यहाँ पर दो वेरिएशंस की हमने बात करी, एक था जो कि बिलो लेवल ऑफ 70 रीच कर रहा था, एंड जो था दूसरा दैट वाज अबव 130। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एंड प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं, आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। And I daily provide educational lectures on psychology, and I hope कि आपको ये टॉपिक आज तक जितने भी टॉपिक्स क्लियर हुए हैं वो वेल अंडरस्टूड होंगे। एंड अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, देन यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड please like and share my channel to all the fellow students who are going to be studying psychology or who are studying psychology right now. And thank you very much.